हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक रेशनल नंबर एंड एक्सरसाइज इज 3D. In this exercise, specially we will discuss about the sum of rational number and three different cases we will learn here. To finding the sum of given rational number when the denominator of given rational number are different. So the first case is when the denominator of given rational numbers are such that one number is the factor of other. This is the first case. And second case, when the denominator do not have the common factor. And the third case, when the denominator have common factors. So let us see the exercise. Find the sum of question number first, part A. Find the sum of 1 by 2 plus 7 upon minus 8. So here the first rational number is 1 by 2 and second rational number is 7 upon minus 8 or minus 7 upon 8 or minus of 7 by 8, same thing. So this second rational number is negative and previous sign is positive. So if plus is multiplied by minus, then here it will be 7 upon 8. So simply we have to subtract these two rational number, that is 7 upon 8 we have to subtract from 1 by 2. So here the denominator of both the rational number, first denominator is 2, second is 8. That is these two denominator are in common factor. So the LCM will be 8 because 8 can be divided by 2. So first we will divide this denominator or LCM 8 by 2. It will be divided by 4. 4 is multiplied by 1. So 1 into 4 minus of 8 divided by 8 one time, so 7 into 1. So it will be 4 minus 7 upon 8. So 4 minus 7 means minus 3 upon 8 is your answer. This is the question number first, part A. Second is part B of question number first, minus 1 upon 4 plus 7 upon minus 12. So the first rational number is minus 1 upon 4 and second plus minus, again it will be 7 upon 12. So both the rational number are negative. So simply if we take minus as common, then 1 by 4 plus 7 by 12. So for the addition of these two, now both the denominator are common in factor because 4 is the factor of 12. So here LCM will be 12. Now divide this 12 by 4, 4 3s are 12, so minus 1 into 3 minus 7 into 1 because 12 divided by 12 1. So minus 3 minus 7 upon 12. So this will be minus 10 upon 12 is your answer. Okay. Then the C part. C is find the sum of 8 right 3 by 5 plus of minus 7 right 1 upon 10. So these are the two again mixed fractions. So first we will convert in fraction. So 5 8 is 40 plus 3, that is 43 upon 5, and it will be plus of 10 into 7, 70 plus 1 minus of 71 upon 10. Now plus minus will be minus of 43 upon 5 minus of 71 upon 10. Here see the denominator are factor of each other, 5 and 10. So LCM will be 10. Okay. Now divide this LCM by 5. 5 2 is 10. So 43 into 2 minus 71 into 1. So it will be 86 minus 71 upon 10. 86 minus 71, that will be 9 and 6, that will be 15 upon 10. So in simplest form, again 15 upon 10 are multiple of 5. So 5 2s are 10 and 5 3s are 15. So answer will be 3 upon 2. Similarly in previous question also 10 and 12 are what? Multiple of
2. So 2 5s are 10 and 2 6s are 12. So here answer will be minus 5 upon 6. So please pause the video now down. The next question, D part of question number first, D. Minus 1 write 7 upon 15 plus minus of 19 upon 30. So out of these two rational number, first is mixed fraction. So 15 into 1 plus 7, that is 22 upon 15 minus, and this plus minus will be minus, so minus 19 upon 30. Here see the denominator of both the rational numbers are 15 and 13, they are common in factor because 15 is the factor of 30. So here LCM will be 30. Okay. So now divide this LCM 30 by 15, 15 to the 30, so minus 22 into 2 minus 19 into 1 because 30 divided by 30, 1. So minus 44 minus 19 upon 30. So minus both the term in numerator are negative, so 44 and 19 will be minus of 63 upon 30. That's your answer. Okay, in simplest form, these are the multiple of 3, so we can divide this 3 2 ja 6, 3 1 ja 3 and 3 10 ja 30. So it will be minus 21 upon 30 will be your lowest form answer. So this was the question number first. Now question number second, part A. Question number second is subtract 1 by 13 from. Subtract 1 by 13 from, किसमें से घटाना है? From minus 5 upon 26. So क्वेश्चन का मीनिंग समझिए, 1 upon 13 को सब्सट्रैक्ट करना अपने को इस फ्रैक्शन से, तो जिसमें से सब्सट्रैक्ट करना उसको पहले लिखेंगे 5 upon 26 में से सब्सट्रैक्ट करना 1 upon 13. So 5 upon 26 minus 1 upon 13. See, now both the rational number, first is also negative, second is also negative, and the denominator of both the rational number are having common factor. So 13 is the common factor of 26. So here LCM will be 26. अब 26 को अपन डिवाइड करेंगे, 26 से कितना आएगा? 1 टाइम 1 into 5, that is minus 5 into 1. माइनस 13 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 13 2 जा 26, so 1 into 2, so minus 5 minus 2 upon 26, that is minus 7 upon 26, your answer. Number 3, 8 the following. So question number 3, part A, 7 upon minus 8 plus 5 upon 11. Here rational number are there, first is negative, second is positive, and we have to add these two rational number when the denominator are different and they have no common factor. So जब दो रेशनल नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना, दोनों का डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट है, मींस दे हैव ना कॉमन फैक्टर, then how we will find the LCM? LCM will be just multiplication of these two. So 8 into 11, that will be 88. So simply we will multiply the denominator and that will be LCM. Now this 7 upon minus 8 means minus 7 upon 8 है. So 8 से डिवाइड करेंगे, 88 को कितने बार डिवाइड होगा ये? 11 टाइम. और 11 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, तो माइनस 7 into 11 प्लस 11 से 88 को डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम, 5 into 8. So this will be minus of 77 plus 8 5s are 40 upon 88. अब 77 में से 40, बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे? दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू का पहले डिफरेंस निकालेंगे और साइन कौन सा पुट अप करेंगे? जिसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये 77 ज्यादा है, तो
तो 77 40 में कितना ऐड करेगी 77 होगा 10 8 करने पे 50 10 पर 60 फिर 10 पे 70 तो 37 सो डिफरेंस विल बी -37 अपॉन 88 यही आपका आंसर। सेकंड पार्ट बी पार्ट इज 8 1 राइट 2 अपॉन 3 प्लस ऑफ -2 राइट 1 upon 5. So these are the again two mixed fraction. 3 1 जा 3, 3 and 2, 5 upon 3 plus 2 5 जा 10, 10 plus 1, 11. So -11 upon 5. So 5 upon 3 minus 11 upon 5. अब देखिए 5 and 3 both are the different number. So अपन दोनों इनको 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये इनका LCM हो जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 15। नाउ 3 से डिवाइड करेंगे 15 को 5 टाइम 5 into 5 that is 25 minus 11 into 3 क्योंकि 5 को 15 से डिवाइड करेंगे कितने बार डिवाइड होगा 3 बार। नाउ 5 5 जा 25 minus 11 3 जा 33 अपॉन 15। अब देखिए न्यूमरेटर में ये पॉजिटिव 25 है ये नेगेटिव 33 है। सो न्यूमेरिकल वैल्यू 33 की बड़ी है और दोनों के अपोजिट साइन है तो अपन क्या करेंगे जब दो नंबर को ऐड करना है और दोनों अपोजिट साइन है तो डिफरेंस निकालते हैं। 25 में कितना ऐड करेंगे 33 हो 8 सो डिफरेंस बचा आपका -8 अपॉन 15 यही आपका आंसर है। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट इसी क्वेश्चन का सी पार्ट इज 8 -1 राइट C1 is -1 right 3 upon 7 plus of 1 right 3 upon 8। अब देखिए -1 right 3 upon 7 means 7 1 जा 7 plus 3 -10 upon 7 plus 8 1 जा 8 and 3 11 upon 8। Now 7 और 8 का जो मल्टीप्लिकेशन है that will be 56 so LCM will be 56। जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 8 बार तो -10 into 8 प्लस 8 से डिवाइड करूंगा तो 7 बार 7 को मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर से तो 11 into 7। अब देखिए 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -80 प्लस 11 into 7 77 अपॉन कितना हो रहा 56। देखिए -80 प्लस 77 डिफरेंस कितना बचेगा -3 सो -3 अपॉन 56 दैट्स योर आंसर। सो इन दिस वे we can add the two rational number when the denominator are different and they have no common factor। तो जब भी denominator different हो common factor नहीं हो तो LCM निकालने के लिए least common division या LCD निकालने के लिए अपन क्या करेंगे दोनों के denominator को multiply करेंगे वही आपका least common divisor हो जाएगा LCD और we can say LCM also। Now next क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन थर्ड का डी पार्ट। सो D1 is 8 -14 राइट 7 upon 11 प्लस ऑफ -35 राइट 9 upon 10। So again two mixed fraction are given and both the mixed fraction are negative in sign and we have to find the sum of these two। So first क्या करेंगे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से कितना आएगा देखो 14 into 11 तो 11 4 जा 44 carry 4 and 11 1 जा 11 and 4 that will be 15 so it will be 154। 154 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 ऐड करेंगे तो 61 तो -161 अपॉन 11। ऐसे ही देखो प्लस माइनस तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 350 और 350 को 50 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 359 अपॉन 10। ठीक है दोनों को मिक्स फ्रैक्शन से किसमें कन्वर्ट किया अपन ने पहले फ्रैक्शन में और यहाँ ऐड करना था दोनों नेगेटिव को तो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव आ जाएगा। नाउ एलसीएम क्या दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है और दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सीधा एलसीडी निकालने के लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर को आपस में तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 into 10 दैट इज 110।
अब 110 में मैं जब 11 से डिवाइड करूंगा तो 10 टाइम, तो -161 इंटू 10 -359 इंटू जब 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा 11, तो यहाँ मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या, लास्ट में एक जीरो एक्स्ट्रा रखना, तो ये तो हो जाएगा -1610 माइनस 359 को 11 से, तो 11 इंटू 9 99 का 9 कैरी 9, 11 5 जा 55, 55 में 9 ऐड करेंगे तो कितना होगा 64, 64 का 4 कैरी 6। नाउ देन 11 3 जा 33 और 6 कितना होगा 33 6 39। सो बोथ द नंबर आर नेगेटिव डिवाइडेड बाय 110। दोनों नंबर नेगेटिव है तो अपन क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर लेंगे दोनों को, 0 and 9 इट विल बी 9, 1 and 4 5, 6 and 9 15 का 5 कैरी 1, 3 and 1 4 and 1 5, so minus 5559 upon 110. So this is your answer. So please pause the video and note down. Question number 4, subtract. Again, just like the question number second है ये. Question number 4 में क्या करना है? Two fractions are given और first fraction को second में से subtract करना है. तो question number 4, part A, 3/7 from 5/-9. 3/7 को किस में subtract करना है? 5/-9 से, see on the board. So first is 5/-9, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है किसको 3/7 को, तो दोनों के बीच में क्या प्रोडक्ट करेंगे माइनस साइन। अब देखिए 5/-9 का मतलब -5/9 माइनस ऑफ 3/7। देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है बोथ द डिफरेंट नंबर एंड So to find the LCM just हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM आएगा इसका 9 7 जा 63। नाउ 9 से डिवाइड करेंगे 63 को 7 बार, 7 को 5 से तो 5 into 7 माइनस 3 into 7 से डिवाइड करेंगे 9 बार तो 3 into 9। So -5 into 7 that is -35 -27/63। दोनों क्वांटिटी नेगेटिव हैं, ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 and 7, 12 का 2 कैरी 1, 3 and 2 5 and 1 6, तो -62/63। दैट इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट -9/22 from -5/21। -9/22 को सब्सट्रैक्ट करना है -5/21 से। सो -5/21 माइनस ऑफ -9/22। देखिए इस वाली फ्रैक्शन में से इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो जिसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे उसके पहले माइनस साइन लगाएंगे। सो -5/21 एज इट इज है और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 9/22 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 21 into 22। अब देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, जब मैं 21 से डिवाइड करूंगा तो 22 बचेगा क्योंकि 21 कैंसिल हो जाएगा, तो -5 into 22 प्लस 9 into जब 22 से डिवाइड करूंगा तो 22 कैंसिल हो जाएगा, 21 बच जाएगा। अब देखो -5 into 22 -110 प्लस ऑफ 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 189 और 21 को 22 से डिवाइड करेंगे तो 22/21 मल्टीप्लाई 21 2 जा 42 का 2 कैरी 4, 21 2 जा 42, 42 और 4
46, तो 462। ओके, आप देखिए -110 प्लस 189 है। ओके, तो इन दोनों में से ये पॉजिटिव साइन है बड़ी क्वांटिटी, ये नेगेटिव साइन है स्मॉल क्वांटिटी है। तो जब दो क्वांटिटी एक दूसरे के ऑपोजिट साइन की होती है तो अपन डिफरेंस निकालते हैं। तो 189 में से 110 माइनस करेंगे तो प्लस का 79 बचेगा, तो प्लस 79 अपॉन 462, इट विल बी योर आंसर। देन सी पार्ट, अगेन सी क्या करना है, सब्सट्रैक्ट -1 राइट 1/7 फ्रॉम किसमें से, -2 राइट 3 अपॉन 10। -1 राइट 1/7 को -2 राइट 3/10 में से सब्सट्रैक्ट करना है। तो -2 राइट 3 अपॉन 10 माइनस ऑफ -1 राइट 1/7 किसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, सेकंड मिक्स फ्रैक्शन में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जिसको सब्सट्रैक्ट करना है उसके पहले माइनस साइन लगाना, भले ही वो पहले नेगेटिव हो। ओके, ये ध्यान रखना। आप देखो 10 2 जा 20 प्लस 3 -23 अपॉन 10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 1 जा 7 प्लस 1 7 n प्लस 1 8 अपॉन 7। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है 10 और 7, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10 × 7, 70 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखें ताकि आपको डायरेक्ट 10 से डिवाइड करेंगे तो 7 एलसीएम आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, क्वेश्चन 7, तो 7 × -23 × 7 प्लस 8, जब 7 से डिवाइड करूंगा तो 10 बचेगा, तो 8 × 10। आप देखिए 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2, 14 और 2 कितना होता है 16, तो -161 प्लस ऑफ 80 अपॉन, अब यहां लिख देंगे अपन 70, 10 × 7 कितना होगा 70। अब देखो 161 में से जब मैं 80 सब्सट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 81 बचेगा, वो माइनस का, तो -81 अपॉन 70, दैट्स योर आंसर। सो this was the question number C of question number 4. Please pause the video, note down. Now question number 4 का last part, that is D part. D part क्या है बेटे, D में हमें क्या करना है, subtract -6 right 5 upon 8 from -6 राइट 5/8 को किस में से सब्ट्रैक्ट करना, 1 राइट 4/11 में से। तो अपन क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, इसमें से, तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उसको अपन फर्स्ट लिखेंगे। तो 1 राइट 4/11 माइनस ऑफ -6 राइट 5/8। अब देखो 11 बन जाए, 11 प्लस 4 कितना होगा 15/11, और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 6 8 जा 6 8 6 जा 48 प्लस 5 48 प्लस 5 53/8, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है बेटे, दोनों डिफरेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका क्या होगा एलसीडी। एलसीडी का मतलब क्या है, एलसीडी लीस्ट कॉमन डिवीजर। इन दोनों का जब दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो लीस्ट कॉमन डिवीजर क्या होगा, दैट इज एलसीएम क्या होगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, और उनका मल्टीप्ल देखो 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा। अब 88 क्यों नहीं लिख रहे हैं अपन, क्योंकि इजी रखने के लिए कि मैं वापस जब 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं 11 × 8/11 मतलब 11 से डिवाइड करूंगा तो 11 से 11 कट जाएगा, मतलब 8 बच रहा सीधा, तो डाउट नहीं होगा। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा 15 से, जो क्वेश्चन आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर से, प्लस ये 53 है 53। अब देखो 53 किससे मल्टीप्लाई होगा, जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा 11 × 8 को जो बचेगा उससे, दैट इज क्वेश्चन से, जो जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो क्वेश्चन कितना बचेगा 11 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 53 से। आप देखिए 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा 120 प्लस 53 को 11 से, तो 11 3 जा 33 का 3 कैरी 3 11 5 जा 55 और 3 58, सो 583/88। आप देखो 583 में 128 करेंगे तो आंसर आएगा 3 8 and
2 10 का 0 कैरी 1 5 1 6 and 7 703 upon 88. So this is the subsection of -6 write 5 upon 8 from 1 write 4 upon 11. So please pause the video, note down. Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरीके से आपको रेशनल नंबर दे रखे हैं जिनका क्या करना है, सम निकालना है। सो पहले वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, देखो हम 3 केस डिस्कस कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में। सब्सट्रैक्शन ऑफ और एडिशन ऑफ रेशनल नंबर व्हेन केस फर्स्ट व्हेन द डिनोमिनेटर हैव कॉमन फैक्टर, सेकंड when the denominator have no common factor, and third the denominator have common factor but number are different. So question number 5, find the sum of, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए -17 upon 20 plus -19 upon 25, -17 upon 20 -19 upon इन दोनों का सम निकालना। देखिए फर्स्ट रेशनल नंबर है -17 upon 20 प्लस माइनस माइनस 19 upon 25। देखिए डिनोमिनेटर एक 20 है, दूसरा 25 है, इन दोनों का एलसीडी क्या आएगा 20 into 25। जब मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो 25 बचेगा, तो -17 into 25 -19 into, जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो 20 बचेगा, तो into 20। आप देखो -17 को 25 से मल्टीप्लाई करना, तो 25 से बन जाए कितना होगा 175, 175 का 5 कैरी 17, 25 और 17 कितना होगा 25 एंड 17 42, तो 425 माइनस 19 2 जा 38, सो 380 अपॉन 25 2 जा ये हो जाएगा आपका 500। अब देखो 425 में से 380 माइनस होगा तो कितना बचेगा 45 बचेगा, क्योंकि 380 में 28 करेंगे तो 400 और 25 तो 20 एंड 25 दैट इज 45 अपॉन 500। इसको लिस्ट मल्टीपल में निकालना है तो 5 के मल्टीपल है, देखो ये 5 2 जा सॉरी 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा, सो 9 अपॉन 100 विल बी योर आंसर। दैट बी पार्ट। B part, sum of 1 right 5 upon 8 plus 9 upon -12. So 1 right 5 upon 8, 8 1 जा 8, 8 and 5 13 upon 8 minus 9 upon 12। LCM कितना आएगा, देखो 8 और 12 का LCM कितना आएगा। LCM कैसे लेते हैं बेटे, LCM देखो LCM भी हम आपको सिखा देते हैं, 8 and 12 का LCM। जब भी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जिनका एलसीएम लेना है तो पहले दोनों नंबर को ऐसे लिखेंगे और सबसे पहले जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है, देखो 2 से डिवाइड हो रहा 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये तो डिवाइड हो जाएगा 1 बार, ये 3 एज इट इज, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 एज इट इज, ये 1। अब देखो इनको सबको मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, दैट इज 2 into 2 into 2 into 3, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी 24। सो 8 and 12 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वो सबसे छोटा मल्टीपल जिसमें दोनों क्वांटिटी का डिवीजन होता है, दैट इज कॉल्ड लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको अपन एलसीएम कहते हैं। समटाइम इट इज आल्सो नोन एज एलसीडी, लिस्ट कॉमन डिवीजन। कॉमन लिस्ट वह छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है, तो कौन सा नंबर आया वो 24, इसको अपन क्या कहेंगे एलसीएम। ओके, आप देखिए जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार डिवाइड होगा 24, 8 3 जा 3 बार,
3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर से, तो 13 इंटू 3 माइनस 9 इंटू 12 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार डिवाइड होगा, 2 बार, तो 2 इंटू 9 दैट विल बी 18। नाउ 13 3 जा 39 माइनस, देखो ये कितना है 12, 9 2 जा सॉरी 9 2 जा ये 18 अपॉन 24। अब देखो 39 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटे, कितना बचेगा 21, सो 21 अपॉन 24, 21 अपॉन 24 विल बी योर आंसर। अब देखो 21 और 24 किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल, तो ये 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24, सो 7 अपॉन 8 विल बी योर आंसर। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो हम ऐसे रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस निकाल रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर मीन्स वी हैव टू फाइंड फर्स्ट देयर एलसीडी और एलसीएम एंड देन वी हैव टू फाइंड देयर सम और डिफरेंस। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर सी ऑफ फिफ्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पार्ट सी, -2 राइट 5 अपॉन 6 प्लस 2 राइट 9 अपॉन 14, इन दोनों का सम निकालना। देखिए दोनों मिक्स फ्रैक्शन है, पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे दैट इज रेशनल नंबर, तो 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 कितना होगा 17, तो -17 अपॉन 6 प्लस 14 2 जा 28, 28 एंड 9, 28 एंड 9 विल बी 37, तो 37 अपॉन 14। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 6 एंड 14 एंड दे हैव नो कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे 6 एंड 14 का। एलसीएम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, फिर 3 1 जा 3, 7 एज इट इज, फिर 7 1 और 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, तो एलसीएम कितना आया आपका 42। अब देखिए ये एलसीएम साइड में निकालना, आप रफ वर्क में भी निकाल सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 42। अब 6 से डिवाइड करेंगे 42 को, कितने बार डिवाइड होगा 7 बार, 7 मल्टीप्लाई होगा 7 17 इंटू 7 प्लस 14 से डिवाइड करेंगे 14 3 जा 42 3 बार, तो 37 इंटू 3। अब देखो -7 7 जा 49 एंड 7 एंड 4 कितना होगा 11, तो -119 प्लस 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 3 3 जा 9 एंड 2 11 अपॉन 42। देखिए माइनस का 119 है, पॉजिटिव का 111 है, तो कितना बचेगा माइनस का 8, सो -8 अपॉन 42। 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो कितना बराबर जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 21, सो आंसर विल बी -4 अपॉन 21। सो this was the question number 5. Please pause the video and note down.